Hello everyone. We are discussing the questions of geography and under the geography prelim series we are discussing climatology and the topics that have been asked in the previous year examination. Now today we'll discuss the topic revolution of earth. However, this topic is a very small topic, but even then also in the last 5 years two questions have been asked in the prelims examination from this topic itself. One question was asked last year only, 2024, and another question was asked in 2022. So let's see this topic, revolution of Earth. Let's see the questions first and then we'll see the topic in detail. The question of 2024 is, on June 21st, every year, which of the following latitude or the latitudes experience or experiences a sunlight more than 12 hours? Certain latitudes have been given and accordingly the options have been framed. 2022, the question was, in the in the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in the four options have been given. So let's see the details of the topic first. Revolution of Earth. So we know that Earth performs two type of motions. One is rotation, another is revolution. So आज हम लोग अर्थ के रेवोल्यूशन की बात करेंगे, जो अर्थ सन के चारों तरफ परिक्रमा करती है, रेवोल्यूशन करती है, उसकी बात करेंगे. So let's see the certain facts first. So सन के अराउंड अर्थ का रेवोल्यूशन है, तो फर्स्ट थिंग विल राइट अर्थ revolves around the sun in how much time? In 365 days and 6 hours. Roughly, this is the time taken by the Earth to complete one revolution around the Sun. 365 days, 6 hours. Second fact, it is revolving in the orbit which is broadly elliptical. So it is not a circular orbit. So let's say this is Sun and this is the broadly orbit that Earth follows around the Sun. So you can see that at certain point of time, Earth would be closest to the Sun. जैसे as this point of time, Earth is closest to the Sun. So this position, this situation is called perihelion. कुछ terms है जो हो सकता है फिल्म्स में पूछ ले. So this is called perihelion. So perihelion is the situation when Earth is closest to the Sun. अगर आप इस डिस्टेंस को देखें, so this is the largest distance between the Sun and the Earth. मान लेते हैं ये Earth. So this situation is called aphelion. So aphelion is the situation when Earth is at the farthest distance from the Sun.
जब सन से अर्थ बहुत दूर होगा, सबसे ज्यादा दूरी पर होगा, उस सिचुएशन को बोल रहे हैं एफिलियन। और जब क्लोजेस्ट होगा, न्यूनतम दूरी पर होगा, तो दैट इज कॉल्ड पेरीहीलियन। One more thing we need to know that during this revolution around the sun, Earth is actually tilted on its axis. So it is not like the Earth is straight like this. It has some tilt from the vertical, and that tilt is 23.5 degree from the vertical of the orbital plane. So there is tilt in the Earth 23.5 degree from the vertical of the orbital plane. इसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, जिस ऑर्बिट पे जो प्लेन ये फॉर्म हो रहा है इस ऑर्बिट की वजह से, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। तो बेसिकली सन सन कुछ ऐसा, तो ये है अर्थ टिल्टेड, और ऐसा ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। तो देखते हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या है ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? So first implication is variation in the length or duration of day and night. First implication that we are going to talk about is that there is variation in the duration of the day and duration of the night due to the revolution of Earth around the Sun. And this variation is attributed to revolution as well as the tilt of the Earth on its axis. So केवल अगर revolution होता, tilt नहीं होता, तो ये variation नहीं मिलता. You need to understand this thing. क्योंकि अगर ये मान लेते हैं ये सन है और ये हमारा अर्थ है, ये सन है, तो अगर ये स्ट्रेट होता ऐसा, ये टिल्ट नहीं होता, तो वेरिएशन नहीं होगा. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. तो वन थिंग वी ऑलरेडी नो कि ड्यूरिंग दिस 1 year of movement, apparent movement of the sun, why I am saying apparent movement of the sun? Because in reality it is the earth which is moving around the sun, not the sun. But अपने को अर्थ से ऑब्जर्व करने पे इट appears as if sun is moving around the earth. तो इसलिए मैंने बोला apparent movement of the sun. So we know that on 21st June the sun appears to be overhead the Tropic of Cancer. So let me write that. Tropic of Cancer पे sun is overhead, sun is vertically overhead, and this date is 21st of June. So on every 21st और 22nd of June थोड़ा सा वेरिएशन वो रहता है, क्योंकि there are a lot of other things involved into it. But roughly we should know कि 20 से 22 जून को sun is vertically over at the Tropic of Cancer. Let's say कि this is the sun and इस तरीके से tilt है अर्थ का, and this is 21st June. तो ये टिल्ट जो होने की वजह से जो सनरेज होंगी वो वर्टिकल इक्वेटर पर ना होकर दे आर वर्टिकल
एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी बात को हमने लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज सन and let's assume that this is our earth and it is the tilted axis जो मैंने अभी ड्रॉ किया। Obviously this is equator. Over the equator we have tropic of Cancer, and after that another important latitude is Arctic Circle. So 1 is equator, 2 is tropic of Cancer, 3 is Arctic Circle. Similarly, in the southern hemisphere, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle is the fifth line. ये ब्रॉडली इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमने ड्रॉ कर दिए अर्थ सरफेस पे। तो सन इज वर्टिकल एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21st June. Sun is vertical at Tropic of Cancer on 21st June. तो ये सनरेज आ रही है, इस लाइन पर वर्टिकल है, मतलब अगर मैं इसको दिखाऊं ऐसे तो ये टिल्ट है। तो आपको नहीं लगता सनरेज यहां भी पहुंच रही हूं, क्योंकि साउथ पोल सॉरी नॉर्थ पोल कुछ ऐसा। तो अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल और ये पोल और इधर भी सनरेज पहुंचेंगी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सनरेज विल रीच टिल आर्कटिक ऑफ सर्कल लाइक दिस। तो ये जो ड्रॉ किया है मैंने, ये एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इंक्लूडिंग एंटायर आर्कटिक सर्कल, ये पूरा एरिया वुड बी अंडर द सन रेज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ये आपको एक सर्कल टाइप का दिखेगा। दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इस सनरेज से वन थिंग इज क्लियर कि on 21st June sunrays are vertical to the Tropic of Cancer and entire Arctic Circle is experiencing daytime. ध्यान से देखिए, this entire portion is under the influence of the sunlight for 24 hours. वो रोटेट भी कर रहा है, बट वो पूरी लाइट उस पूरे सर्कल को कवर कर चुकी है, आर्कटिक सर्कल को। So this circle of illumination represents the length of the day. So अगर आप ध्यान से देखिए तो एंटायर सर्कल, आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला एरिया is under the influence of sunlight. So for this reason, entire Arctic Circle and above it, the latitudes above it will be illuminated, will be under sunlight throughout 24 hours. तो 24 घंटे वहां पर दिन मिलेगा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को अगर आप देखोगे तो यू रियलाइज कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसमें डे लेंथ आधे से ज्यादा है, मतलब 12 घंटे से ज्यादा होगी। आप प्रैक्टिकल भी अगर देखिए 21 जून को नदर्न हेमिस्फेयर में दिन का लेंथ सबसे बड़ा होता है, 12 घंटे से ज्यादा। मेक सेंस? अपने को पता है कि अर्थ के रेवोल्यूशन का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो वेस्ट टू ईस्ट, सेम एज द रोटेशन का डायरेक्शन। तो इस साइड से यह ऐसे मूव करना शुरू करेगा। ध्यान देते हैं, ये मैं सन मान रहा था, इसको मैंने बोला 21st जून की पोजीशन।
ऐसे जाएगा, ऐसे ये यहाँ पर टिल्ट तो वही रहेगा, सेम टिल्ट का डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगा। अभी आप नोट करिए तो सन इज वर्टिकली ओवरहेड द इक्वेटर आफ्टर 3 मंथ्स, एक क्वार्टर कंप्लीट करने के बाद। तो ऑल्दो ये डायग्राम में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये 3D है, बट ये सन और सन इस इक्वेटर पर वर्टिकल होगा। तो सन अगर मैं ऐसे मान लूं तो अर्थ ये है, तो इक्वेटर पर वर्टिकल, इक्वेटर पर वर्टिकल होने का मतलब कि सन रेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। तो दिस विल कम आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज 12 मंथ्स, तो एक क्वार्टर 3 महीने में। सो दिस वुड बी अराउंड 23 सितंबर। जून में 3 महीने जोड़ेंगे, सितंबर। तो सितंबर में इक्विनॉक्स होगा। इक्विनॉक्स का मतलब द ड्यूरेशन, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट विल बी इक्वल। तो कितना कितना, 12 आवर्स डे एंड नाइट ईच, बोथ। आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा और, फिर मैं कुछ चीजें और एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वार्टर, अनदर 3 मंथ्स, क्या होगा? टिल्ट तो वैसा ही रहेगा जैसा टिल्ट अपने पास शुरू में था। This one is equator, this is Tropic of Capricorn, Cancer, Arctic Circle, Antarctic Circle। ध्यान से देखिए तो सन इज वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 3 मंथ बाद क्या सिचुएशन होगी सर? दिस इज सितंबर, तो दिस वुड बी 22nd 21st ऑफ दिसंबर, दिसंबर के मंथ में 3 महीने। इस टाइम पे अगर आप प्रैक्टिकली भी एनालाइज करिए तो नदर्न हेमिस्फेयर में, इंडिया में विंटर का टाइम पीरियड है। So that is why it is also called winter solstice, क्योंकि जो नेमिंग की गई है वो नदर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में की गई है। एनीवे, सो विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पे दिसंबर सेकेंड हाफ में sunrays are vertical to Tropic of Capricorn. This is our equator. तो सनरेज कुछ ऐसे वर्टिकल होंगी यहां तक, ऐसे यहां तक। तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। दिस इज आवर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ध्यान से देखिए तो एंटायर अंटार्कटिक सर्कल इज अंडर सनलाइट। तो अब एंटायर अंटार्कटिक सर्कल में you'll experience days for 24 hours. There would be no concept of night during this situation in the Antarctic Circle. Next देखते हैं another 3 months. अभी अगर मैं इसको इक्वेटर मान लूं तो यहां पर कैप्रिकॉन है, यहां पर सनलाइट है वर्टिकली ओवरहेड, सनरेज क्योंकि सन यहां पे प्रेजेंट है। इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा क्योंकि ट्रॉपिक के पहुंचने के बाद ये फिर से नॉर्थ की साइड मूव करेगा, तो नॉर्थवर्ड में फिर से इक्वेटर के ऊपर आएगा 3 महीने बाद। दिस इज अगेन इक्विनॉक्स पोजीशन, यहां पर इक्विनॉक्स था। डेट क्या होगी इसकी? 3 महीने आगे, तो दिस वुड बी समवेयर अराउंड 23 मार्च। इक्विनॉक्स मतलब कि सन रेज आर वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। फिर से सनरेज का इक्वल डिवीजन होगा इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, तो इसलिए डेज एंड नाइट्स विल हैव इक्वल ड्यूरेशन, इसलिए इक्विनॉक्स बोला इसको। अगर मैं नेमिंग और
स्पेसिफिक कर दूं, क्योंकि दो अलग अलग इक्विनॉक्स, तो नाम अलग होना चाहिए। सितंबर का इक्विनॉक्स इज कॉल्ड ऑटम इक्विनॉक्स और फॉल इक्विनॉक्स, एंड मार्च का इक्विनॉक्स इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स। Now let's see how the length of day and night is changing. फिर से 21 जून को आई, ये मैं इक्वेटर मान रहा हूं अभी, इसको मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मान रहा हूं। 21 जून को सन यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इसीलिए यहां वर्टिकली ओवरहेड सन रेज पड़ रही है। तो अपने को पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचने के बाद सन का साउथवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन है तो हाईएस्ट लेंथ ऑफ डे होगा नदर्न हेमिस्फेयर में, ऑलरेडी हमने इस डायग्राम के थ्रू देखा। आर्कटिक सर्कल पूरा एल्यूमिनेटेड होगा। बट सर जब ये साउथवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगा, कैप्री कैंसर से साउथ की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो सनरेज हैं इस टाइम पे, इस 3 महीने के ड्यूरेशन में डे की लेंथ अभी भी ज्यादा होगी नाइट लेंथ से? मतलब अभी भी जो दिन का ड्यूरेशन होगा दैट वुड बी मोर देन दी लेंथ ऑफ द नाइट। क्यों? क्योंकि अभी भी सन इज इन द नदर्न हेमिस्फेयर। सेकेंड थिंग, बट वन मोर थिंग, there would be reduction in the duration of the day. अभी भी लेंथ ऑफ द डे इज मोर देन द लेंथ ऑफ द नाइट, बट जैसे जैसे सन इक्वेटर की तरफ बढ़ेगा, जो लेंथ है डे का नदर्न हेमिस्फेयर में, इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सो लेट मी राइट दैट लेंथ ऑफ डे in northern hemisphere will start declining as sun moves from tropic of cancer towards equator। बट अभी भी डे का लेंथ नदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। मेक सेंस? इस 21 जून को बोलते हैं ना, इसको भी सॉल्स्टिस और इसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। मैंने बोला कि नेमिंग नदर्न हेमिस्फेयर के रेस्पेक्ट में की गई, इसलिए नदर्न हेमिस्फेयर में अभी समर है तो इसलिए समर सॉल्स्टिस। सो वी हैव सीन कि सन इज मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर, और ये पोजीशन है जब इक्वेटर पे पहुंच गया, इक्विनॉक्स वाली पोजीशन, 22-23 सितंबर वाली पोजीशन। जब सन इक्वेटर पे पहुंच जाएगा तो इक्वल डेज एंड नाइट्स थ्रू आउट बोथ द हेमिस्फेयर्स, एंड जैसे ही ये साउथवर्ड फर्दर मूव करेगा इट विल एंटर इनटू द सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में एंट्री कर गया तो सदर्न हेमिस्फेयर में डेज का लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और डे की लेंथ वुड बी लेस देन द लेंथ ऑफ द नाइट। तो लेट मी राइट दैट। सो फर्स्ट थिंग, जब ये मूवमेंट हो रहा होगा, मतलब इक्वेटर से टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा होगा, सो द लेंथ ऑफ डे will be less than the length of night in
नदर्न हेमिस्फेयर, इसी का उल्टा सदर्न हेमिस्फेयर में हो रहा होगा। तो लेंथ ऑफ डे, क्योंकि इक्वल डे लेंथ और नाइट लेंथ आ चुका था जब इक्विनॉक्स बना, अब डे का लेंथ घटना शुरू हो जाएगा। सेकेंड थिंग, there would be decline in the length of the day in northern hemisphere as sun moves from equator to tropic of Capricorn. ये सन आ रहा था, यहां पहुंच गया, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। दिस इज द टाइम ऑफ सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस आ गया। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिसंबर 21-22। सन यहां पर है। नाउ सन विल अगेन स्टार्ट साउथवर्ड मूव, सॉरी नॉर्थवर्ड मूवमेंट। दिस इज द सिचुएशन। जब यहां पर सन है तो डे की लेंथ सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज्यादा, मैक्सिमम, क्योंकि सन यहां पे, लेकिन नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन। तो यहां पर शॉर्टेस्ट डे कहां पर, नदर्न हेमिस्फेयर में। एंड इन द सेम सिचुएशन 22 दिसंबर को ही लॉन्गेस्ट डे वुड बी इन दी सदर्न हेमिस्फेयर। मैंने बोला जो नदर्न में होगा उसका उल्टा सदर्न में हो रहा है। एनीवे, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सन फिर से नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगा, नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि फ्रॉम दिसंबर टिल मार्च जब इक्विनॉक्स अटेन होगा तो नदर्न हेमिस्फेयर में डे का लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट अभी भी डे का लेंथ वुड बी लेस देन दी लेंथ ऑफ द नाइट। लेट मी राइट दैट। सो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट length of day in northern hemisphere start increasing, क्योंकि शॉर्टेस्ट डे ऑलरेडी आ चुका है, अब लेंथ बढ़ना शुरू होगा। बट इवन देन ऑल्सो अभी भी नदर्न हेमिस्फेयर में लेंथ ऑफ डे इज लेस देन लेंथ ऑफ नाइट। ये मैं नदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूं। फिर से सन इक्वेटर के ऊपर पहुंचेगा, इक्विनॉक्स इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, तो हम आ गए स्प्रिंग इक्विनॉक्स में। सिमिलरली इस केस में भी मार्च से जब आप जून की तरफ फॉरवर्ड होंगे तो लेंथ का डे फर्दर बढ़ेगा, लेकिन बाय दिस टाइम लेंथ का डे हैज बिकम ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द नाइट इन नदर्न हेमिस्फेयर। So I'm not writing that. If you're clear with these three, you can write it on your own. So one thing is clear, with this revolution of the earth around the sun, there is variation in the duration of day and night in both the hemispheres. जिस हेमिस्फेयर के रेस्पेक्ट में हमें देखना होगा, हम देख लेंगे कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। एक तो आपको रेट ऑफ डिक्रीज एंड इंक्रीज देखना है, एंड दूसरा आपको लेंथ देखना है, एब्सोल्यूट लेंथ, कि डे का लेंथ ज्यादा है या नाइट का लेंथ ज्यादा है। वो दोनों हमने इक्वली एक्सप्लेन कर दिया। तो नाउ लेट्स सी द सेकंड इम्प्लीकेशन, इसी से ही रिलेटेड है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सीजन। जब ये मान लेते हैं सन ऐसे ऐसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग parts of the earth have different duration of day. So let me tell you, season का best manifestation is duration
of the day. Length of the day. जितना ज्यादा बड़ा दिन होगा उतनी ज्यादा हीटिंग होगी और फिर वो समर का टाइम आ जाएगा। और अगर रात बड़ी हुई तो कूलिंग ज्यादा हो रही होगी तो वो विंटर का टाइम होगा। जैसे 21 जून का टाइम पीरियड देखिए, 21 जून को दिन बहुत बड़ा तो इंडिया में समर का पीक का टाइम है वो। या आप मार्च, मिड मार्च से एनालाइज करिए, जब इक्विनॉक्स हुआ 20-22 मार्च को इक्विनॉक्स, उसके बाद जब सन इज मूविंग टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो 21 जून की तरफ बढ़ेगा तो डे की लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन इन इंडिया या नदर्न हेमिस्फेयर। कैन वी से? सो बेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सीजनैलिटी इज द ड्यूरेशन ऑफ द डे। जितना ड्यूरेशन ऑफ डे ज्यादा उतना ही समर कंडीशंस ज्यादा। एंड अपने को दिख रहा है कि रोटेशन के साथ में ड्यूरेशन ऑफ द नाइट and day is changing, so accordingly seasons should appear. So seasonality is okay, it is related to revolution, obviously along with the tilt. अगर वो tilt नहीं होता तो फिर अर्थ का रोटेशन बिल्कुल सीधा सीधा और फिर accordingly सनलाइट का इक्वल डिवीजन होता। तो डेज का लेंथ और नाइट्स का लेंथ सेम होता, और डेज का लेंथ और नाइट का लेंथ अगर सेम हो गया तो there would be no variation in the season. Is that okay? So third implication, although we'll not discuss in detail about this, is the different types of tides are formed due to revolution of the earth. जब tide का discussion करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो it is also linked to tide formation on the surface of the earth. Third, you must have heard of something called eclipse. ग्रहण लगता है, you must have heard of solar eclipse and lunar eclipse. These two are also associated with revolution of earth. That we'll discuss in detail later on because that itself requires a discussion. For a single topic will require discussion of around 40-50 minutes. So this is all about the revolution of earth. Now let's see the question. The question, now if you know, on 21st June every year, which of the following latitude experiences sunlight more than 12 hours? 21st जून की बात कर रहा है तो 21st जून को ये अगर सन मानते हैं हम तो somehow earth would be tilted like this. This is our equator. तो sun rays are vertically over the tropic of Cancer. sun rays कुछ ऐसे यहां तक जा रही होंगी तो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन अगर मैं ड्रॉ करूं तो वुड बी लाइक दिस। सो कह रहा है 12 आवर से ज्यादा, तो 12 आवर से ज्यादा 12 आवर इक्वेटर पे, और उसके ऊपर आप देखिए तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्कटिक सर्कल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर पे 12 आवर्स, उसको ज्यादा चाहिए तो दिस कैन नॉट बी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर yes more than 12 hours. Tropic of Cancer, Capricorn, sorry, less than 12 hours. And Arctic Circle more than 12 hours, much more than 12 hours. So answer would be 2 and 4, D for Delhi. Come to this. In the northern hemisphere, the longest day of the year, northern hemisphere में longest day कब मिलेगा? First half of the month of June. Yes, this is the right answer. बाकी देखने की भी जरूरत नहीं, बट एक बार रीड कर लीजिए। Second half of month of June. Sorry, this is incorrect. I'm sorry. Not the first half, this is the second half. So this is the kind of mistake that we commit in the examination hall also. जब हम थोड़ा सा जल्दबाजी में होते हैं तो it is natural to make mistakes when you are in hurry. So
आंसर वुड बी बी सर, सेकेंड हाफ, क्योंकि अपने को 20-22 जून में मिल रहा है, तो दिस इज द सेकेंड हाफ. So answer to this question would be B for Bombay. Let me read the other options now. So first half of month of July, no sir, ये थोड़ा सा दूर हो जा रहा है. Second half of month of July, no. So it is in the somewhere close to 20th June. 20-21 जून, 22 जून आप ले लीजिए. So this is all about revolution of the earth. I hope you understood the topic. Let me know in the comment section if you have any doubt with respect to the topic. Thank you so very much. Have a great day. See you very soon.